B is equal to P of A into P of B. So based on that, let us now proceed further. Problems based on independent events. So from NCERT textbook exercise 13.2. So first 10 questions are very basic and simple. So quickly check out 11th question, though I gave this question as a part of your homework. Given two independent events A and B such that you are provided P of A as 0.3, P of B is 0.6, right? Find P of A and B. So few things are very obvious. This is because they are independent. So that would be simply the product of these two, which is 0.18. Second part, they're asking for A and not B. Now, A and not B is given by the formula P of A minus P of A intersection B. And check it out, we already have the value of A intersection B. Use it over here and our required answer. Similarly, when we talk about, say, third part, P of A or B, or at least one of them. So this is given by, again, a very simple formula whose all the terms we have already calculated above. So that may be used over here. And for the fourth part, neither A nor B. So De Morgan's law is one of the possible option, but since it is given they are independent A and B, so is A dash and B dash. So let me use that simple property over here. So that will be my required answer. So this is a direct formula based problem. Sometime even in the board examination, one marker direct problem may also come. Now 12th question is in fact a logical problem, though it is already being discussed, in fact in grade 11th, which I suppose. A die is tossed thrice. So die is tossed thrice simply means that the sample space would contain 216 elements. Find the probability of getting odd number at least once. So in fact, there are two different ways in which you can tackle this problem. One is a very simple approach using the idea of independent events. How? Getting odd number at least once mean 1 minus probability of getting no odd number. A simple logic is used. Now, since the die is thrown thrice, or we are getting no odd number, means in all three throws we must be getting only even number. And as getting even and odd number is independent, though it is not written in the problem, but that is common sense. So they are independent simply means this will split into the following product. So that probability of getting even number is half, half and half, which will give you the required answer. Can any one of you suggest me some alternative way to solve this question? Though I would recommend this first method only. But when we say getting the odd number at least once, what does that mean? Minimum one time we must have the odd number.
right? So if O represent getting odd number, E represent getting even number, at least once O should be there. So O, E, E. But do remember, at least once odd number है, so we must have the odd number getting at the second place or getting the odd number as the third place. Though the probability of each of this will be the same. Now here I consider getting the odd number once. I may get the odd number twice. So twice means O, O, E. But altogether remember, they may change their positions as well. So E may be at the first position, E may be at the middle, and E may be at the end. And do not forget, at least once means I may get all three odd numbers as well. Now they are all independent. Simplify using the concept of independent events. So definitely you will get the answer 7 by 8. But this is of course a very tricky and lengthier process which is not recommended. So understand the method used in the first time. थर्टींथ ऑनवर्ड आपकी उस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली बोर्ड में आती रही हैं. Check it out. Two balls are drawn at random with replacement. Right, two balls are drawn, and this is important, with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability. First part, both are red. So that is simple. Both are red mean I am looking to this particular thing. Clearly getting the red ball is independent to each other, and red ball आने की probability क्या है? 8 by 18. And since it is with replacement, next would be again 8 by 18. Yes, बिल्कुल ठीक. Yes, वंशिका. सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कहा गया है. First ball is red and first is black, sorry. First is black and second is red. Now their positions are fixed. So first should be black and second should be red. So that is simply again being independent. Black की probability, black की ये रही 10/18 और रेड की हमें पता है 8/18, because this is simple case of with replacement. Now third part में जो कह रहे हैं that is logical. कह रहे हैं one of them is black and other is red. अब पोजीशन फिक्स नहीं करी है तो इसका मतलब ब्लैक आ जाए फिर रेड आ जाए, नहीं तो पहले रेड आ जाए और फिर ब्लैक आ जाए. So understand the difference between the second and third part. Yes. तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रेड आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, रेड आने की है 8/18. ब्लैक आने की पहले ब्लैक था तो 10 ही लिखूंगा मैं यहाँ पर, और फिर रेड आ जाए उसकी है 8/18. प्लस में अगर आप ध्यान से देखें ये सिर्फ इंटरचेंज ही तो हुए हैं, और इन सिंपल वर्ड इस टर्म का ट्वाइस हो गया. दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर. सो इंटू 2 भी होगा यहाँ पर,
ये ध्यान रखेंगे क्योंकि वन ऑफ देम कहा है, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन फिक्स सेकंड पार्ट में हुई थी. So that is the only thing you need to understand. So I hope this is particularly this part is clear to all of you. Can I see the yes or no in the chat box? Okay, Isha. Okay, Tanmay, you have some doubt? Chalo, I'm reading the name. Or Tanmay, was that by mistake? अच्छा, Yes, sir. सेकंड पार्ट, शिखर. सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या कहा है? फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड. अब आपके पास पोजीशन फिक्स हो गई है भाई, क्लियर बता दिया कि पहली बॉल है वो रेड आनी, सॉरी ब्लैक आनी चाहिए. तो ये अब बी यहाँ पर फिक्स है और सेकंड रेड आनी चाहिए, तो ये पोजीशन अब फिक्स हो गई है. तो ब्लैक रेड आए या रेड ब्लैक आए वो थर्ड पार्ट हो गया है. यहाँ पोजीशन फिक्स का मतलब पहले प्लेस पे ही ब्लैक, उसकी प्रोबेबिलिटी 10/18 है, और फिर दूसरी पोजीशन पे रेड आए वो 8/18 है. तो नाउ द पोजीशन इज एक्चुअली फिक्स्ड. वो बस हमें यहां पर ध्यान रखना है. Please try out this question, very important type. Yes, waiting for you to respond. Check it out. पढ़िए इसे ध्यान से. Probability of solving specific problem independently by A and B, half and 1/3. So of course not solving by them will be 1 minus half, और B का हो जाएगा 2/3. अब कह रहे हैं इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली. वैसे भी ये चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, बट यहां तो क्लियर बता दिया है कि देयर इज नो ग्रुप वर्क. फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. नाउ इट इज ऑफ कोर्स रिक्वायरिंग अ सिंपल लॉजिक. प्रॉब्लम कितने केसेस में सॉल्व हो सकती है? ए ने कर दिया बट बी नहीं सॉल्व कर पाया, बट इवन इन दिस केस आई हैव द आंसर. नहीं तो ए से नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व, बी ने कर दिया. डू रिमेंबर, ये भी तो हो सकता था कि दोनों ने सही सॉल्व कर दिया, तो दैट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी. बस अब हमें पता है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, सो इज ए एंड बी डैश. Similarly, this will split, and finally this will split. I have all the values with me. Just you need to substitute over here and you will have your required answer. ये cancel मत करो 2 से 2. Check it out. आपने simple LCM ले लिया 6. So that would be simpler calculation. Your required answer. Now what's about the second part? कह रहे हैं अब की बार क्या है, exactly one of them solves. तो यही डिफरेंस को अब आपको पहचानना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में. प्रॉब्लम एग्जैक्टली वन ऑफ देम से ही हो,
ए ने कर दिया, बी नहीं कर पाया. A couldn't do it, B solved it, and this is nothing but this case. तो बस आप फार्मूला स्प्लिट करके दिखा देना और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा यहां से यहां. थर्ड पार्ट आई एम एडिंग फॉर माई बाय माई सेल्फ. थर्ड पार्ट में मान लो कह दिया दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. सो व्हाट इज द आंसर? एनीवन? प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. 1/3. यस, बिल्कुल ठीक. ये सिंपल. फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का सिंपली यहां से आ जाएगा. और इसको आप देखो कैसे सोच सकते थे. प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी? ए भी नहीं कर पाया और एंड बी भी नहीं कर पाया, और ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. आप इसको लगा लीजिए, देन इवन यू विल हैव दिस आंसर. दिस इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन योर 10th 11th क्लास में बस जो बेसिक चीजें करा हुआ है. कार्ड ड्रॉ इज स्पेड, कार्ड ड्रॉन इज एस. बस आपको वो एक्सपेरिमेंट को सोचना है. उसके बाद यू जस्ट नीड टू चेक वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट. सो यू नीड टू वेरीफाई वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. So this is only about writing down the sample space and proceeding further your homework. चेक कर लीजिए, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन. और 16th क्वेश्चन चेक करिए. इन अ हॉस्टल 60% of students read हिंदी न्यूज़पेपर. 60%. इसको मैं स्मॉलर में अभी नहीं लाऊंगा, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली फॉर्म में. और इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले बताए हैं 40%. और साथ में ये भी दे दिया 20% रीड बोथ. सो एवरीथिंग इज गिवन टू मी. सो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी नीदर रीड हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर. ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो आप चेक करिए, ये किसके इक्वल हम कह सकते हैं? ये हो जाएगा ये इस तरह से स्प्लिट, राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट करेक्ट जो मैंने स्प्लिट करा है क्लास? check it out. It is not given anywhere they are independent. और इवन अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं, वो है 60/100 इंटू 40/100. सो दैट इज 24/100. और P ऑफ H इंटरसेक्शन E, ये तो आपको 20/100 गिवन है. इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं होने का मतलब H और E जो हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये स्प्लिटिंग गलत हो जाएगा. यस, दिस इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड. सो अब हम क्या करने वाले, इसका मतलब ए पार्ट में आई विल कम बैक टू दिस वंस अगेन. और यहां देखिए, अब आपको डी, यस गुड उपासना, अब हमें ऑप्शन नहीं है, मुझे डी मॉर्गन्स लॉ को ही सोचना रहेगा. सो दैट इज 1 माइनस ऑफ दिस, which is 1 minus P of H plus P of E minus P of H intersection E.
all the values if you check out they are known to me. स्मॉलर फॉर्म में इसलिए नहीं करते, बाद में एलसीएम लेना इजी रहेगा, बस अब आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं. व्हाट अबाउट बी पार्ट? बी पार्ट में क्या करना है? ओके, आंसर आप बता रहे हैं 1/5. ठीक है, वो बस आप चेक कर लीजिए. What about B part? What exactly is required? ठीक है, ओके शिखर श्रीधर. बी पार्ट में अगर आप ध्यान से पढ़े क्या कह रहे हैं, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. कौन सा कंसेप्ट की बात कर ली है यहां पर, सोचिए ध्यान से. इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ये मुझे गिवन हो गया. इफ शी रीड्स, तो ये मुझे पता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर? जो मुझे पता है, माने कंडीशनल. यस, गुड ईशा. P of E by H. अच्छा, आंसर भी बताए हैं. ओके, वो चेक कर लेते हैं. सो दैट अगर ये आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद तो हमें पता है इट इज अ स्ट्रेट फार्मूला. एंड चेक इट आउट. आपको ये सारी वैल्यूज, इनफैक्ट ये दोनों मतलब, और H का है दिस. परफेक्ट, ये आ गया था 2/6 विच इज 1/3. ऑलरेडी प्रतीक्षा ने आंसर बता दिया है. ठीक. सिमिलरली सी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है, वहां बस H/E पूछ लिया. ओके, 1/2. प्लीज एवरीवन चेक इट आउट. ओके, ठीक है. शिखर कंफर्म्स द आंसर इज हाफ. भव्य इज आल्सो सेइंग हाफ. ठीक है, आप सभी चेक कर लीजिए. Now I am going to consider problems from assignment as well as the past few year board examination. यहाँ इस पे मत जाया करो कि यहाँ ये लिखा हुआ ना 2001, ये क्वेश्चन 2016 में भी आया है, 17 या 16 में भी ये, और एक और इसका सिमिलर वर्जन. तो ये तो मैंने किसी, जहां बुक मेरे पास अवेलेबल था पीडीएफ, उसमें पुराना वर्जन है, बट अदरवाइज ये लेटेस्ट भी आते रहे. A speaks truth in 60% of the cases. A की ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी, B 90% of the cases. So assume कर लें कि A is the 21st century वाला पर्सन और B जो है 20th century वाला है. बैकवर्ड हो गया ना, सच बोलता है. Okay, so P of not A, that would be simply 40/100, and P of not B is 10/100. In what percentage of cases they likely to contradict each other in stating the same fact? तो अब आप चेक करिए, दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट. कंट्राडिक्ट कब करेंगे? ए ने सच बोला, बी ने झूठ बोल दिया, नहीं तो ए ने झूठ बोला, बी ने सच बोल दिया. सो इन both of the cases they are contradicting each other. तो अब फिर ये कॉमन सेंस फिर यहां अप्लाई हुआ, दे आर इंडिपेंडेंट. सो ये स्प्लिट हो गया लाइक दिस. सो व्हाट इज P of A? ये वैल्यूज को बस यहां रिप्लेस करना है, एंड देन P of not A and P of B. So this is 60/100 plus, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, मैं सही कर रहा हूं ना, 60/100 प्लस
36/100। ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ गलती हो रही है एक बार चेक करना, कहीं मैं कोई गलती कर रहा हूं शायद। A and B dash, oh sorry, this is 6, yes this is 6/100। मैं वही कहूँ कहीं कोई मिस्टेक है, पॉसिबल आ ही नहीं सकता ये। ओके, सो 6/100 प्लस 42/100, so what is the required answer? Question is still not complete. उपासना, think logically. अब ये क्वेश्चन, परसेंटेज निकालनी है। सॉरी, सर परसेंटेज निकालनी है। यस गुड। देखो यही मेन चीज अब यहाँ सोचने वाली थी क्वेश्चन में। बोर्ड में हाफ मार्क इस चीज का डिडक्ट हुआ था, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ लैंग्वेज को ढंग से नहीं पढ़ा था, 2 मार्कर है, 1 नंबर कटना चाहिए। बट बोर्ड में हाफ मार्क किस चीज का काटा गया? व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस। तो आपसे परसेंटेज पूछा था। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 42% एंड नॉट 42/100। 42/100 प्रोबेबिलिटी आई थी, आपसे परसेंटेज पूछा था। So I think that difference, minute difference, but yes there is, वो क्लियर है। A very similar question in different step. Okay, ठीक है उपासना, अब इसमें सोचिए क्या करना है। A speak truth 70% of cases, पी की बात करिए। अच्छा अब देखो यहाँ ना इस चीज का प्लीज आप सभी ध्यान रखिए, ये नोटेशन पी ऑफ पी लिखूंगा ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो पी स्पीक्स ट्रुथ, तो मैं इवेंट ई क्या मान लेता हूं? दैट पी इज स्पीकिंग ट्रुथ। एफ मैंने क्या मान लिया? क्यू स्पीक्स ट्रुथ, क्योंकि एक्चुअल में तो पी और क्यू पर्सन्स हैं, ये राम और श्याम है, तो इसे नोटेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना गिवन? 70/100। पी ऑफ क्यू 80/100। तो ठीक है, उसके बाद ये तो इजीली हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, in what percentage of cases are they likely to agree in stating the same fact? Now agreeing in stating the same fact का देखो मतलब क्या हो गया? मान लो both speaks truth या both speaks false। ये दोनों केसेस तो हो सकते हैं, यस ईदर नो वन लाइज और बोथ लाइज, परफेक्ट शिखर। तो इसका मतलब अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो ई एफ, नहीं तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। सो ये दोनों केसेस बनेंगे व्हेन दे आर लाइकली टू एग्री। और इसके बाद तो फिर दिस इज सिंपल थिंग, ई और एफ क्योंकि इंडिपेंडेंट है, सो इज ई डैश एंड एफ डैश। आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे और दिस टाइम आई एम श्योर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा। आपको ये आंसर नहीं निकालना, जो भी आंसर आ गया उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे एज वी डिड इन दी लास्ट क्वेश्चन। 62%। ओके, बाकी भी देख लीजिए। 56 + 6 बिल्कुल ठीक, 62%। ओके ठीक है भव्य, ग्रेट। ओके श्रीधर और उपासना सभी का ठीक आया इसका मतलब। अब 3 पर्सन्स की बात करेंगे मैक्सिमम।
अभी तक तो 2 वाला केस था, अब इसे ध्यान से पहचानिए। A problem is given to 3 students whose chances of solving, तो इवेंट्स मान लिए ABC। अब ये प्लीज डिफाइन कर देना दैट ए क्या है, इवेंट दैट first student is solving the problem, B is second student is solving the problem, and so on correctly. What is the probability that the problem will be solved? How many cases will be there? अच्छा केशव, आपका आंसर अभी देखा मैंने, प्रतीक्षा ओके ठीक है। So what is asked? That problem is solved. तो प्रॉब्लम कितने केसेस में सॉल्व होगी? यू जस्ट नीड टू थिंक लॉजिकली। ए ने कर दिया, बी और सी नहीं कर पाए, अल्टीमेटली आंसर तो मुझे करेक्ट मिल ही गया ना। इसी तरह से क्या हो सकता था, बी कुड सॉल्व इट। इसी तरह से क्या हो सकता था, सी कुड ओनली सॉल्व इट। फिर क्या हो सकता था, फिर क्या हो सकता था, ए ने कर दिया और बी ने कर दिया, ऐसे 2 लोगों ने कर दिया, ए ने करा और सी ने कर दिया। और क्या हो सकता था, बी ने कर दिया और सी ने कर दिया। नहीं तो क्या हो सकता था, तीनों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बट डू यू थिंक is it the appropriate way to solve this question? So 1 minus Yes. probability that no one हाँ does. जी ठीक है, आपने बोल के बताया, उपासना ने लिख दिया है, शिखर ने भी, ओके ग्रेट। So the idea is this is though correct but we will not follow this. हम एक सिंपल लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, ये तो अब हम सीख चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, माने 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, and the problem is not solved simply means A is unable to solve, B is unable to solve, and as well as C is unable to solve. बस वो तो फिर अब पता ही है, they all will be independent to each other. And this is 1 minus 1 by 3, 2 by 3, 5 by 7, 5 by 8. I'm sure आपको पता चल रहा होगा ये कहां से मैंने वैल्यूज लिखी हैं। You just need to simplify to get your required answer. Question. Very similar last one, having many parts to this. A can hit a target 4 times in 5 shots. So probably in 4 shots, C 2 times in 3 shots. फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, ए बी से ऑल में हिट द टारगेट, सो आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रही है बी हिट कर दे, सी हिट कर दे, ए में लूज। सो अगेन यू हैव अ वेरी सिमिलर आइडिया, नो डिफरेंस, ये आ गया।
थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो जिस समय आप लिखोगे ऑडियो और वीडियो लैग तो समझ जाओ कि हाँ मीन स्कूल इशू रहने ही वाले हैं। आई दिस इज एक्चुअली नॉट इन माय कंट्रोल। तो थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एनी टू ऑफ ABC विल हिट द टारगेट। कोई भी दो की सक्सेस की बात करी है। तो पहले केस में ए नहीं कर पाया और फिर मैंने मान लिया बी couldn't do it क्योंकि एनी टू हिट की बात करी थी। That you can easily solve. Now this is the challenging problem and in fact the last question जो हम देखेंगे। You have 2 minutes, in fact 3 minutes। अपने आप सोचिए और ये फिर आपके होमवर्क में आने वाला है। बट प्लीज थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, कैसे करें। Which part you cannot understand, Bhavya? The previous question you are talking about? अच्छा, एक बार आप जब सॉल्यूशन पार्ट को देखोगे ना आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये सब चीजें हम ऑलरेडी कॉमन सेंस से पहले यूज कर चुके हैं। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ द फ्यू पार्ट्स जो मैंने लिखे हैं और लॉजिकली सोचेंगे, आराम से ये समझ आ जाएगा क्योंकि ये बहुत इजी और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब वाला जो क्वेश्चन दिया है लास्ट वन, दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी एंड कैलकुलेटिव एज वेल। प्लीज सोचिए जरा इसे कैसे करेंगे। आई विल एंड द क्लास इन नेक्स्ट 2 minutes just by giving you the hint so that I'm expecting कि आप इसका आंसर सिर्फ मुझे भेज रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन तो पक्का आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन CBSE 2015 एग्जाम में आया था, 6 मार्कर। जनरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट माना नहीं गया था कि भाई बेस थ्योरम या रैंडम वेरिएबल से ही आता है, बट बोर्ड में तीनों सेट में ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट तो A डैश और B भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये इसके इक्वल आ जाएगा और ये क्या दे देगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज 2/15 फर्स्ट इक्वेशन। अगेन ये गिवन है मुझे, विच गिव्स मी, ये लिख देना कि ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उससे मुझे ये इक्वेशन मिल गई। दी कॉन्सेप्ट ऑफ 12th क्लास इज ओवर। अब ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन बन चुका है। You have two equations in two variables, solve them together to get the values of A and B. एक hint दे देता हूं, you will have two different answers and a quadratic will be formed. So complete this question in your homework and send me the answer. And further last में ये मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है
I will share this separately as the homework part so that the topic independent के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. चलिए, I am ending the class. Many of them already left. चलिए, please you can leave the meeting now. Thank you, sir. Thank you, you, sir. sir. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you. चलिए, please leave the meeting now. चलिए, please leave.